Good afternoon, everyone. It gives me great pleasure to welcome you all to this exciting session. Today we have the privilege of hearing from an exceptional personality in the world of design, Mr. Abir Baoni, who is joining us to share his invaluable insights and experiences. Mr. Abir Baoni is highly accomplished design architect and senior designer with an impressive career spanning 7 years. Over the year, he has played pivotal roles in conceptualization and executing innovative designs that are not only creative but highly functional. His expertise extends across a diverse range of projects, including graphic design, product design, and interior spaces. Currently, Mr. Baoni works with Devika Narayan and Company, where he continues to make his mark with outstanding creative contribution. He is also the co-founder of Odd Collaborative, a design studio celebrated for its unique and innovative solutions. His work exemplifies a harmonious blend of aesthetics and practicality, making him a distinguished figure in the design community. Moreover, his commitment to excellence is reflected in his successful international collaborations, which have earned him recognition as a leader in his field. Mr. Baoni completed his Bachelor of Architecture from Navratna University, Vadodara, and has continued to inspire others with his vision and dedication. Students, let us give a warm welcome to Mr. Abir Baoni as we look forward to learning from his remarkable journey and expertise. I request Tuti Patel and Krisha Patel to welcome Sir with a bouquet of flowers. So while the presentation and all, I'll just talk about. कोई idea है ये क्यों कर रहे हैं, क्या है? अच्छा, it's about storytelling, कहानियां बताना, कहानियां सुनाना, कहानियां सुनना. है कोई point? नहीं ना? मुझे भी पहले ऐसा लगता था, पर थोड़ा थोड़ा काम कर करके सीखते सीखते पता चला है कि थोड़ी जरूरत है. ठीक है. अच्छा, I was talking about where I was, right? See, if I tell a story like this, it doesn't work, right? Simple. Okay, so I was saying कि हाँ, so I quit. I started my own thing in 2020. I run a graphic design company through which we still design events because even my partner is an architect. We do branding, packaging. We work with fashion brands, we do shoots for them. We basically create stories for brands is part of what we do. And the other part of what I do, which would be event design, you could say that I tell stories through spaces. ठीक है, मतलब शादियों में क्या होता है यार, किसी कपल की क्या स्टोरी है वो कैसे बताना है गेस्ट को, ठीक है, बेसिक है वो, थोड़ा मतलब है, depends if you guys are interested or not. But let's come to this. Let's talk about storytelling. अच्छा, तो अभी तक we have reached the consensus कि हमें ज़्यादा interest नहीं है कहानियों में, ठीक है? What form do we consume stories in? Insta reels? Swipe करते करते आता है ना? ठीक है, थोड़ा बोलना पड़ेगा. मैं यहाँ अकेले ऐसे बात नहीं करने वाला हूँ, मेरे को लेक्चर लेना नहीं आता है. हम बात कर रहे हैं, तो प्लीज मुझे बताओ और कैसे स्टोरीज मतलब कैसे सुनते हैं, देखते हैं, जो भी है. सॉरी, अरे चिल्लाओ, जो भी है. मूवीज देखते हैं हम, स्टोरीज, ठीक है, और क्या हुआ? एनिमे, पॉडकास्ट, हाँ, और कुछ? बुक्स पढ़ते हो यार? एनीवन रीड्स? हाउ? वेरी फ्यू, बट गुड जॉब. एंड व्हाट एल्स? म्यूजिक में भी स्टोरीज, हाँ ठीक है, सही है. और कुछ? ओपन माइक्स एंड ऑल, ठीक है. प्लेज देखें, नुक्कड़ नाटका, ऐसा सब कुछ भी, ठीक है.
अब थोड़ा इंडियन जाते हैं, अपने कल्चर में क्या क्या होती है स्टोरीज? रामायण महाभारत, और कुछ? अच्छा, तो रामायण के प्ले को क्या बोलते हैं? रामलीला, है ना? तो ये भी देखा है। और अच्छा, सबसे पहली बार या अपने पहले मेमोरीज क्या है स्टोरीज सुनने के बारे में? पहली जो स्टोरी सुनी थी, क्या कोई याद है? ऐसी कोई एक स्टोरी होगी ना सबने। कौन सी वाली? वो क्रो वाला? हाँ, क्रो वाला स्टोरी। और कुछ है? सॉरी सॉरी, एक एक करके बताओ ना तो पता भी चले। रैबिट एंड टॉर्टॉइज, अच्छा। और कुछ? लायन एंड माउस, वो मुझे याद नहीं है पर हाँ ठीक है। तो बेसिकली ये स्टोरीज से, मतलब स्टोरीज के थ्रू क्यों ये सब हम, मतलब अच्छा वो कौवा स्मार्ट है ये पता चला अपन को, रैबिट लेजी है ये पता चला अपन को, और कुछ एक मॉरल होता था ना वो स्टोरीज में, है ना? नाना नानी दादा दादी के साथ बैठ के स्टोरीज सुनिए, वो सुनाई है उनने, है ना? कैसी स्टोरीज होती थी वो? कि हम जब बच्चे थे तब हम इतना चल के स्कूल जाते थे। नहीं, ये सब नहीं हुआ, ठीक है। थोड़ा बहुत हुआ होगा ना? हाँ हुआ है, पर मतलब बाकी जो काम की स्टोरीज होती थी, ये भी काम की हुई, आई एम श्योर, सॉरी, पर जो इम्पोर्टेंट स्टोरीज होती थी, या जैसे ये अब हम ये रैबिट और ये वाली बात कर रहे थे, मॉरल्स होते थे ना ये स्टोरीज में। तो मतलब एटलीस्ट जब हम छोटे थे, हमको मॉरल सिखाने के लिए स्टोरीज बताई गई हैं, ठीक है? अब नाउ द सेशन टुडे इज गोइंग टू बी अबाउट हाउ टू यूज स्टोरी टेलिंग इन द रियल वर्ल्ड। यहाँ कोई मैनेजमेंट वाले बच्चे हैं? डू यू थिंक स्टोरी टेलिंग इज एन इंपॉर्टेंट टूल किसी भी तरीके से? आएगा, अभी तुम्हारे कोर्स में भी आएगा, इसलिए पूछ रहा हूं। होगा ना? मतलब कहीं तो यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज इट टू। अच्छा, व्हाट आर द ब्रांड्स दैट यू गाइज लाइक? कोई कोई भी एक ब्रांड बताओ। लुई विटॉन, अच्छा ठीक है। बाटा, वो बाटा का डॉगी बहुत क्यूट है नहीं? ठीक है। So I think let's start with this thing about storytelling and our culture. हमने रामायण महाभारत की बात कर ली, राइट? हमने और क्या तरीकों से इंडिया, मतलब स्टोरीज मॉरल्स के लिए सुनते हैं, रिलीजन के लिए सुनते हैं, और क्या होता है? एंटरटेनमेंट होता है ना? मतलब इनिशियली वो सेटिंग होता था ना कि गांव में एक पेड़ के नीचे बैठ के कहानियां सुन रहे हैं। हर ग्रुप में होगा ना एक बंदा, तुम्हारे फ्रेंड्स के हर ग्रुप में एक बंदा होगा ना जो कहानियां अच्छे से सुनाता है नहीं है? है ना? कौन कौन है? है ना? मतलब यू गाइज नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? मतलब ये तो पता है कि एक बंदा है जो कहानियां अच्छे से सुनाता है, ठीक है? और वो उस तरह से सुनाए, बाकी वैसे और कोई सुनाए तो मजा नहीं आने वाला है, राइट? राइट? वो क्यों है वो थोड़ा देखते हैं, ठीक है? मतलब आगे चल के देखते हैं, बट कमिंग बैक टू दिस, so in our culture we talked about the Ramlila, we talked about telling stories through, for religion, for morals, for learning ethics, through stories, right? What are the formats that this is done in? एक तो रामलीला हो गया, प्ले होती है, और कुछ होता है? नहीं होता? कवाली कुछ तो, मतलब चलो अटेंड नहीं किया होगा, सुना नहीं होगा, पर होता है ना? फिर वो कबीर के दोहे भी, देयर इज अ प्रॉपर रेसिटेशन फॉर इट जो होता है, सही बात है? और क्या होता है?
मोस्टली ये सब रिलीजन के तरफ होता है। एक फन वीडियो देखते हैं जो थोड़ा ये भी, आई सॉ दिस रिसेंटली ऑन इंस्टा रील्स बट Hello, check. Hello. दिस इज सम सॉर्ट ऑफ कवाली। Hello, check. Hello. वो सब समझ गए। ठीक है, तो ये देख के सब समझ गए ना किस चीज की बात हो रही है। हाँ, पर है तो कवाली। अच्छी बात है ना। अच्छी बात है कि आवाज नहीं आ रही। नेक्स्ट वाले से करते हैं ऑडियो, पर समझने वाले समझ गए। तो कमिंग बैक टू दिस, इस पे आते हैं। कहानियां याद रखना ज्यादा इजी होता है ना। किसी को ये कब पढ़ते थे हम, ये याद है? कौन सी बुक से? हाँ, कॉमिक बुक से। पर ये स्पेसिफिक है ना कोई? क्या 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 नाम था इनका? बोलो यार। पेपर में भी आता था, इसकी कॉमिक्स आती थी ना। पंचतंत्र याद है किसी को? नहीं, ठीक है। अमर चित्र कथा याद है किसी को? याद है, ठीक है। हम फर्स्ट सेकंड में रहे होंगे जब ये आती थी, जब ये पढ़ते थे। सही बात है। हाँ, उस टाइम पे मतलब चलो ये देख के एकदम से याद आ जाता है ना, इसका वो अमर चित्र कथा का भी तुमको वो पेज और वो उसका कवर और उसका लोगो थोड़ा बहुत याद आता है। ठीक है। इस टाइम पे हमको ईवीएस या कुछ होता था ना, स्कूल में होता था, उसकी टेक्स्ट बुक का कवर याद है? नहीं ना। तो क्यों ऐसा कि क्यों ये याद है और वो याद नहीं है? बेसिक सी बात है ना, ये एंटरटेनमेंट है यार, ये बेटर है, इजी टू रिमेम्बर। इसमें अच्छे पिक्चर्स होते थे, क्रोकोडाइल आता है, कुछ ना कुछ होता रहता है। मतलब फन था ना, ये ज्यादा फन था, इसलिए ये याद है। सिंपल। अच्छा, कोई बोर हो रहा है ना तो मेरे को बता देना, मैं थोड़ा जल्दी भगा दूंगा चीजें। पर ऑल गुड ना? लंच वंच किया था अच्छे से? नींद आ रही है? लंच के बाद अच्छी वाली नींद आती है। ठीक है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक एट हैंड, स्टोरीज आर इजियर टू रिमेंबर देन डेटा। सही बात है। ऑफिस में जाओ, कहीं बैठो, मतलब वो यू आर डीलिंग विद डेटा, फिगर, एनालिटिक्स, वो याद नहीं रहता। पाई चार्ट से याद नहीं रहता ना, पर ऐसे वाले इमेजेस, ऐसे वाली स्टोरीज याद रहती है। इसका एक रीजन है, facts and figures go to the language processing zone in our brain. For stories, especially with visual stories, there are up to 6 zones in the brain that get activated. थोड़ा बहुत साइंस है, पर बेसिकली रीजन ये है कि क्यों ये चीजें याद रहती है और वो याद नहीं रहती। थोड़ा अच्छा, अभी तक इंटरेस्टिंग लग रहा है, बोरिंग लग रहा है? मतलब चलेगा, अभी तक थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आया है। ठीक है। अच्छा, नाउ विल बी मूविंग ऑन टू हाउ वी लुक एट स्टोरीज एंड हाउ वी कंज्यूम स्टोरीज। ठीक है, मतलब उसकी थोड़ी बात हुई, बट ये देख के कुछ समझ आ रहा है क्या हो रहा है? ध्यान से देखो। महाभारत का सीन है, टेम्पल्स में कार्विंग है ये। दिस इज फ्रॉम द कैलाशनाथ टेम्पल इन इलोरा। दिस इज 8th सेंचुरी एडी। कोई मेरे को मैथ्स करके बताओ कितने साल हुए? 8th सेंचुरी एडी। अरे बताओ यार, मतलब 700 से लेके 24, अभी क्या अपना 2024 खत्म होने आया है, राइट? 2000, 1300 साल हुए रफली। ठीक है। हाउ डू वी रीड दिस? लाइन 1, लाइन 2,
हाँ, लेफ्ट टू राइट, सही है ना? ऐसे ही देखेंगे ना ये। अभी 1300 साल बाद भी हम चीजें ऐसे ही देख रहे हैं। अपने ब्रेन को इतना ही आता है, ठीक है? आता है और भी आता है, बट बेसिकली दिस इज मोर और लेस हाउ वी हैव बीन कंज्यूमिंग डेटा फॉर 1300-1500 years. अभी भी बोर हो रहा है कोई? थोड़ा बहुत? हाँ, ठीक है, ठीक है। तो द पॉइंट टू डू दिस वॉज टू से दैट तब से लेके अभी तक ना फॉर्मेट वही रहा है। ये भी हम लेफ्ट टू राइट देख रहे हैं, लाइन बाय लाइन देख रहे हैं। शायद कुछ अलग लैंग्वेजेस में राइट टू लेफ्ट पढ़ते हो, ऊपर से नीचे पढ़ते हो, पर लाइन बाय लाइन, वन आफ्टर द अदर। सही है ना? हमारा ये तो चलो ठीक है, हम इंस्टा भी ऐसे ही स्क्रॉल करते हैं ना, ऐसे देखा ऊपर जाने दिया, ऐसे देखा ऊपर जाने दिया, मतलब अपना फॉर्मेट वही है ना, अभी तक चेंज नहीं हुआ है वो, ठीक है? सो दैट वाज द पॉइंट ऑफ डूइंग दिस एंड दीज आर गुड कॉमिक्स। देख, ये कोई पढ़ता था? ये भी न्यूज़पेपर्स में आते हैं, बड़ौदा टाइम्स में आता है ये, ठीक है? इसकी बात करते हैं। इसके लिए ना मुझे वो सब लोग चाहिए जो अच्छे से स्टोरीज बताते हैं। What makes a good story? ऐसी कोई मूवी या कुछ है जो पसंद आई हो या जिस पे बात कर सकते हैं, जो सबने देखी हो? कुछ भी है? नहीं है? अच्छा, सबने रामलीला देखी थी क्या? नहीं? अच्छा, क्या देखा होगा सबने? कोई शो चल रहा है जो सबने देखा होगा? अच्छा, गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है क्या सबने? नहीं? कुछ एक चीज दो यार जिस पे बात कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलो ये भी छोड़ो। कोई, अच्छा वो क्रो वाली स्टोरी तो सबको पता है, ठीक है? वो स्टोरी को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है? वो स्टोरी स्टार्ट कैसे होती है? What is the first thing that if you're telling someone that story, what will you say? नहीं, टाइटल से स्टार्ट नहीं करेंगे, कहानी बताएंगे तो मतलब कहानी से स्टार्ट करेंगे ना, तो मतलब समर की बात हुई है, ठीक है? तो तुम कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहे हो कि भाई गर्मी है, हाँ, पहली बात। दूसरी चीज, कौवा आया है, एक तो कैरेक्टर्स आए तुम्हारे, गर्मी है, गर्मी में कौवा है, ठीक है? यहां तक पहुंचे। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? उसको प्यास लगी है, गर्मी है, कौवा है, कौवे को प्यास लगी है, ठीक है? सो नाउ यू हैव इंट्रोड्यूस्ड, मतलब यू आर बिल्डिंग अप द स्टोरी एंड यू हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस थिंग कि एक प्रॉब्लम या कुछ एक तुमने इंट्रोड्यूस किया जो मतलब बेसिकली सॉल्व होगा धीरे धीरे। तो कौवा है, कौवे को प्यास लगी है, गर्मी है इसलिए प्यास लगी है, ठीक है? नेक्स्ट क्या होता है? वो पानी ढूंढता उड़ता फिरता है, ठीक है? तो थोड़ा मसाला डाला तुमने कि वो यहाँ भी गया वहां भी गया, उसको नहीं मिला पानी, है ना? सही है? यहां तक सही है? नेक्स्ट क्या करते हैं? उसको पानी दिखता है पर उसमें मतलब मटके के अंदर है और वो पहुंच नहीं पाता पानी तक, है ना? तो so far you have set context for the story, you have introduced the characters and you have introduced a problem which is the पानी मिल गया लेकिन उसमें वो पहुंच नहीं पाएगा। फिर you give it a solution कि वो भाई स्मार्ट है अपना कौवा, ऐसा ऐसा नहीं है, वो डालता है 2-3 पत्थर और पानी पी लेता है, ठीक है? खत्म स्टोरी। सो कॉन्टेक्स्ट था, प्रॉब्लम्स थे या कुछ कुछ तो एक हो रहा था स्टोरी में मतलब, और कैरेक्टर्स थे एंड दे डेल्ट विद इट अ सर्टेन वे, ठीक है? सो नाउ विल बी गोइंग इनटू थोड़ा डिटेल अबाउट हाउ टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड विथ एग्जांपल्स, एंड विल मोस्टली बी टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, क्योंकि एड्स हम वैसे तो स्किप कर देते हैं पर कुछ कुछ बहुत अच्छे होते हैं इसलिए, ठीक है? ये मैं, ये यूसुफ, लौंडिया यार सी मेरा। लाहौर में हमारे घर के सामने एक बड़ा बाग था,
उस बाग का गेट बाप बहादुर के जमाने। रोज शाम को हमने वहां पतंग उड़ानी और उसके बाद जाके यूसुफ की दुकान से जजरिया चुरा के खानी। झझरिया? और मेरा साहब नमस्ते। नमस्ते, मेरी पोती मुंबई वाली। और बेटे क्या हालचाल नमस्ते। है? बचपन की तंग गली फिर से कूद फांदे, छोटी छोटी मीठी चोरी गांठ लेके बांधे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। फजल स्वीट्स? हाँ जी। दादाजान, दिल्ली से किसी की कॉल है। हेलो, यूसुफ अंकल? कौन? जी मैं सुमन बोल रही हूँ दिल्ली से, आपके बचपन के दोस्त बलदेव जी की पोती। याद है बचपन में आप दोनों झझरिया चुरा के खाते थे? बचपन की तंग गली फिर से कूद फांदे, छोटी छोटी मीठी चोरी गांठ लेके बांधे। एक पतंग सा उड़ता था परिंदों की तरह, परिंदों की तरह, परिंदों की तरह। एक दौर था मन मन मोर था, एक दौर था मन मन मोर था। पार्टीशन के वक्त हम रातों रात हिंदुस्तान आ गए। दादू? यूसुफ दी बड़ी याद आती है। कागजों की कश्तियों में डूबा रहता था, झांकती खिड़कियों में उलझा रहता था। वो भी क्या दौर था, मन पे न जोर था। एक दौर था मन मन मोर था, एक दौर था मन मन मोर था। भैया थोड़ा जल्दी। मन मोर। हाँ जी, कौन? हैप्पी बर्थडे यारा। यूसुफ वो यूसुफ, वो मेरे बल्लू, यूसुफ है यार। ठीक है, कमिंग बैक गाइस, ये अभी जो देखा वो गूगल का एड था, ठीक है। स्टार्ट हुआ तो लगा कि गूगल का एड होगा, नहीं ना। कोई मतलब प्रोडक्ट प्लेसमेंट भी इतने ढंग से किया है ना कि अच्छा गूगल बंदा यूज कर रहा है, ठीक है। इट्स बेसिकली द प्रोडक्ट इज सॉल्विंग ऑल योर प्रॉब्लम्स, जो भी हो सकती है कि फ्लाइट चेक करनी है वो चेक कर लिया, किसी कोई दुकान ढूंढनी है किसी और देश में वो मिल गई, ठीक है। एंड दे रैप्ड ऑल ऑफ दिस इन अ वेरी इमोशनल प्लॉट एंड स्पेशली सो दिस वाज मेड फॉर इंडिया। तो इंडिया एवरीवन पार्टीशन हुआ था, ये वो, लॉट्स ऑफ सेंटिमेंट्स अटैच्ड टू इट एंड एक इमोशनल स्टोरी के पैकेज में एक ऐड डाल दिया है बेसिकली, राइट। दैट्स अ गुड वे टू लाइक सेल अ प्रोडक्ट बिकॉज as soon as you attach emotions to something ना, वो याद रहता है। वो हमको ये जो अपने वो जताका टेल्स, पंचतंत्र, ये सब भी इसलिए याद रहते थे क्योंकि इमोशंस थे उसमें थोड़े बहुत, ठीक है। कि वो यार वो क्रोकोडाइल अच्छा आदमी नहीं है ना। सिंपल सी बात है, अपने लिए तब उतना ही होता था और वो इसलिए याद रहता था। इसलिए ईवीएस की टेक्स्ट बुक किसी को याद नहीं है, सिंपल, राइट। So now there is a lot of, on this slide we have some things about what makes it a good story, right? Now, if we are talking about this ad that we just saw, the central message and plot would be based around
द होल पार्टीशन थिंग एंड दैट दो बिछड़े हुए दोस्त मिले, ठीक है। सेटिंग क्या थी अपनी अभी करंट टाइम्स में, बट टू लॉस्ट फ्रेंड्स एंड दे आर कमिंग टुगेदर, दैट इज द central message and the setting that we are working with. The conflict, I wouldn't call it conflict as such, but that's just terminology. कि तुमने ऐसा कुछ एक इंट्रोड्यूस किया है जो सॉल्व करना है, ठीक है, कि ये दो दोस्त बिछड़े हुए हैं, वो चीज सॉल्व करनी है। कैरेक्टर्स थे एंड द कैरेक्टर्स आर ऑल पीपल दैट यू आर एबल टू रिलेट टू, ठीक है, कि मतलब यू मेक कैरेक्टर्स दैट तुम जितना किसी भी बंदे को जितना भी तुम डिटेल आउट करोगे ना वो कैरेक्टर, यू इट्स इजियर एंड इजियर टू रिलेट टू इट। एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग इन टर्म्स ऑफ गुड पीपल, बैड विलन्स ऑल्सो वी रिमेंबर, राइट। अवेंजर्स देखिए सबने, उस याद है? अब वो बुरा आदमी था क्या, मेरे को ये बताओ। देखो, लेकिन है तो विलन, पूरी ये टीम उसके लिए असेंबल हुई उसको मारने के लिए, ये वो टाइम में वापस जाके उसको मारा है, राइट। पर मतलब सी एवरीवन रिमेंबर्स दैट पर्सन एंड एवरीवन रिलेट्स टू दैट पर्सन, सेज दैट ही इज नॉट अ बैड पर्सन, just because good character development basically. Let's talk thoda in detail about everything that was on this slide. ये कैरेक्टर्स हो गए, एंडिंग ऐसी थी जिसमें सब कुछ रैप करके तुमको एक अच्छा सा पैकेज मिल गया, ठीक है। एनी डाउट्स और क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? ये समझ आया? ये नहीं समझना ऐसा भी है? पक्का समझ आया ना? मतलब यू गेट एटलीस्ट द जो हेडिंग्स है वो मोर और लेस समझ आ गया, एंड हाउ इट कम्स इनटू अ स्टोरी वो समझ आ गया। एनी डाउट्स अबाउट एनी ऑफ दीज? शुड आई एक्सप्लेन एनी ऑफ दीज फर्दर? ठीक है। सो नाउ आई एम कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, विच इज एब्स्ट्रैक्शन, एंड एन एग्जाम्पल ऑफ दिस आई एम गोइंग टू गिव यू। मैं अगर पानी की बोतल बोलता हूं तो दिमाग में क्या आता है? पर कौन सी? बिस्लरी? प्लास्टिक की बोतल कैंटीन में मिलती है? नहीं, पर मतलब अपने इंडियंस के लिए वो है एक बिस्लरी, मतलब पानी की बोतल, राइट। पर मैंने ब्रांड का नाम तो लिया नहीं, मैंने सिर्फ पानी की बोतल बोला था, मैंने ये भी नहीं बोला था प्लास्टिक है या स्टील की है, बट सबके दिमाग में वो बिस्लरी बैठ गया, उनका ब्रांडिंग इतना अच्छा है इसलिए, ठीक है। सिंपल सी बात है, दे हैव डन अ गुड जॉब विद इट। तुम पानी सोचो, तुमको बिस्लरी आता है दिमाग में, राइट। वन एग्जाम्पल वुड बी, ये क्या है? चश्मे किसके? कोई पहले ही गांधी बाबू बोल दिया था, है ना। है तो भाई सिर्फ चश्मे, ब्लैक एंड व्हाइट लाइन ड्राइंग है, ऐसा भी कुछ नहीं कि बहुत डिटेल में कुछ बताया है। पर ये कैसे पता कि ये किसके चश्मे हैं? It is an icon, it is a symbol, right? It is a symbol that everyone in our cultural context relates to. सही बात है, गलत बात है? थोड़ा बोर हो रहा है ना अब सब? नहीं? ठीक है। ये कैसे करते हैं वो एक बहुत क्विकली मैं समझाऊंगा। ये समझ आ रहा है? ये दिख रहा है कि क्या हो रहा है? या लेफ्ट साइड पे एक आदमी का चेहरा है, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करते करते वो राइट साइड वाले चीज पे आ गए। हम एक थोड़ा डिटेल सा ड्राइंग किया, एक थोड़ा सिंपल ड्राइंग किया, और एक बहुत ही सिंपल ड्राइंग किया। ये समझ आया? यहां तक समझ आया? इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? बेसिकली सेम ही है ना, है कि नहीं? अब इसमें सिर्फ 3 सिंबल्स हम टाइप कर सकते हैं, वो भी सेम ही चीज है, हाँ कि ना? इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? इफ आई जस्ट से फेस, जैसे मैंने पानी की बोतल बोला था, बिस्लरी दिमाग में आया, तो फेस बोलने से भी ऐसा कुछ आएगा ना दिमाग में। सो माई पॉइंट हियर is that language जो हम बोलते हैं, that is an abstraction of
everything else, मतलब of objects. So मैं ट्री बोल रहा हूँ, अब ट्री का कोई लेना देना नहीं है वो झाड़ या पेड़ से, राइट? सही बात है? ये थोड़ा कहीं छूट रहा है दिमाग के ऊपर से, मतलब ऊपर से जा रहा है तो बताओ। नहीं, ये चीज समझ आया कि लैंग्वेज इज एन एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या हुआ वो समझ आया? एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है? कुछ तो होता होगा। अच्छा, हिंदी पढ़ी है ना सबने स्कूल में? हाँ, उसमें वो एक टाइप की संज्ञा होती है ना अपनी, भाववाचक संज्ञा। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है वो? उसको एब्स्ट्रैक्ट क्यों बोलते हैं? उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, इट इज नॉट टैंजिबल। पीछे समझ आ रहा है? कोई बोर हो रहा है एब्स्ट्रैक्शन की बात पे? ऑल गुड? सही है, ठीक है। तो इन स्टोरी टेलिंग यू यूज एब्स्ट्रैक्शन अ लॉट, स्पेशली इन कॉमिक्स, ठीक है? कौन सी कॉमिक्स पढ़ी है सबने या देखी है या न्यूज़पेपर में जो आती है? गारफील्ड? नहीं देखी? चाचा चौधरी याद है? मतलब जो भी है, कोई मुक्का मारता है तो क्या क्या होता है? एक ऐसा एक्सप्लोजन सा कुछ दिखाते हैं, उसमें वर्ड्स लिखे आते हैं, पाव, कबूम, है ना? तो क्या है वो? इट्स बेसिकली you are representing a sound and an action through just words on a page, right? So you are making it abstract, it is not tangible, मतलब वो तुमको होता हुआ दिख नहीं रहा और तुम्हें पता भी नहीं है कि वो एक्चुअली शायद ऐसा हुआ कि नहीं, पर कोई तुम्हें बोल रहा है कि ये चीज हुई थी, ठीक है? सो बेसिकली यहाँ पे जो दिख रहा है वो भी यही हुआ है कि ये फेस से लेके हम 4 letters पे आ गए, just sounds which put together form this word face, and we use that to say that okay, the face is the same as what we were talking about in that real image. ये समझ आया? कोई डाउट है तो पूछ लो यार। ठीक है, कूल, आगे बढ़ें। कैरेक्टर डेवलपमेंट की भी बात हुई थी। So होता है ना कैरेक्टर, जैसे क्या अपन मतलब जितना डिटेल आउट करो उतना अच्छा है ना? और जो लोग हंस रहे थे उन्हें पता भी चल गया ना क्या हो रहा है। कौन है? देखा सारा लग रहा है जाना पहचाना। कौन? चाय वाला? अच्छा, डॉली चाय वाला। सही है, सही है, सही है, ठीक है। बेसिकली तुम किसी भी कैरेक्टर को, जो भी उसके प्रोमिनेंट डिफाइनिंग फीचर्स है ना, कोई चश्मे पहनता है तो भाई वो चश्मे पहनता है, किसी की मूंछ है तो मूंछ है, किसी के बाल कोई किसी तरह से रखता है तो वो उस तरह से, मतलब वो कैरेक्टर तुम कैसे किसी को समझाओगे कि वो कौन है और क्या है? And to that you add qualities like, okay, he's a good person or a bad person. If he's a good person, okay, through these actions he's a good person. If he's a bad person, oh, this is what he did, so bad person, right? Character development ऐसे ही होता है, सही है, ठीक है? तुम जितना किसी कैरेक्टर को डेवलप करोगे ना, it's easier to relate to that person. अब हमने यहाँ तक जिन चीज़ों की बात की, हमने कहानी कैसे बनाते हैं, कैसे सुनाते हैं, हम कैसे कंज्यूम करते हैं, और एब्स्ट्रैक्शन, कैरेक्टर डेवलपमेंट, वो सारी चीज़ों की बात कर ली। इन चीज़ों का कोई एप्लीकेशन है क्या रियल लाइफ में? नहीं? हाँ, जो भी लगता है बोल दो, बाकी देख लेंगे यार। कुछ तो बोलो। हाँ बताओ बताओ।
हाँ ठीक है. So Air Jordan की branding is basically Michael Jordan dunking the basketball. सही बात है. But storytelling as a whole, does it have an application in real life or anyhow for that matter? ठीक है, मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू ही समझते हैं. चलो, जैसे अपने कॉमिक स्ट्रिप्स होते थे ना, वो मैगी के पीछे, मैगी बनाई है ना सबने, कितने स्टेप्स होते हैं? 3 या 4 होते हैं. वो 3-4 इमेजेस होते हैं कि एक में पानी उबाला, मैगी का केक तोड़ के डाला, मसाला ऐड किया, गर्मा गर्म मैगी रेडी, है ना? इन अ वे इट्स अ स्टोरी, समवन इज टेलिंग यू व्हाट टू डू, कि ये करने से ये होगा, राइट? कॉमिक्स भी अपने थोड़े बहुत ऐसे ही होते हैं ना, जैसे ये है. एटलीस्ट मैगी के वो जैसे होते थे वैसे तो होते ही है ना, कि तुमको 4 इमेजेस मिल रहे हैं, उसके साथ 4 चीजें हो रही है, राइट? तो थ्रू दिस यू आर एबल टू टेल समवन हाउ टू पुट टुगेदर अ स्टूल. दिस इज IKEA. तो एक पेज में समझ में आ गया कि ये स्टूल कैसे असेंबल करना है. आया नहीं आया समझ में कि स्टूल कैसे असेंबल, वो अलग बात है. चलो, तुम्हारे पास अगर ये पार्ट्स होंगे ना सारे, तो मोर और लेस ये देख के हम कर सकते हैं, इतना तो भरोसा है ना खुद पे, है ना? वो स्टूल असेंबल कैसे करना है उसकी बात नहीं है, बस इस चीज की बात है कि तुम पिक्चर्स के थ्रू किसी को ये समझा सकते हो कि ये कैसे करना है, राइट? Another example where storytelling comes in handy. Now, because I studied architecture, we'll be looking at a building. Sorry, you guys, but बिल्डर लोग कैसे भेजते हैं घर? रेडियो पे ऐड सुने होंगे ना, रेडियो सुनते हो? नहीं? अच्छा ठीक है, कोई भी जो गाड़ी चलाता है वो रेडियो सुनेगा, ठीक है, बेसिक. पर चलो फिर भी किसी बिल्डर के एड्स देखें, होर्डिंग तो देखा होगा, कुछ तो देखा होगा. क्या करते हैं उसमें? क्या बोलेंगे वो लोग? प्लान तो चलो होर्डिंग पे कोई भी नहीं डालता, बट देयर थिंग इज कि अच्छा इतना BHK, हाँ इतना ये लग्जरी, इन द लैप ऑफ लग्जरी, 3 BHK, ये वो और इतना स्क्वायर फीट, है ना? इसको करने का बेटर तरीका है क्या? कर सकते हैं, कोशिश करूं मैं. व्हाट इफ आई टेल यू कि ठीक है, ये I go and park my car in the parking, I enter the house, मैं मस्त एक मेरे फॉयर में सीढ़ी के नीचे में मेरा बैग डाल देता हूँ. I go and sit in the guest lounge, मैं थोड़ी देर वहाँ बैठता हूँ, एक किचन में गए, कुछ बनाया, बाहर डेक पे जाके बैठे, काम से आता हूँ. तो ये मेरा रूटीन है बेसिकली, कि मैं बाहर जाके डेक पे बैठे, गार्डन में थोड़े मजे किए, ठीक है. एंड इन ऑल ऑफ दिस इफ आई रैप इट एंड टेल यू कि हाँ ये 2500 स्क्वायर फीट या कुछ है, isn't this a better way of doing it than just saying कि हाँ 3 बेडरूम, एक ये किचन, एक हॉल, ये वो, right? So as soon as you take away the numbers and the data and you make a story around it, it's easier to get your point across to the सामने वाला. Simple सी बात है. ये समझ आया? Do you guys agree with me on this or no? थोड़ा, even if you don't, it's okay, I mean, just tell me. ठीक है. अब कुछ अच्छे एड्स की बात करते हैं. ये गाड़ी देखी हुई है? ये Volkswagen की बीटल है, 50s and 60s का एड है ये. So I'll tell you the problem that happened when these guys launched this car in the US. So Volkswagen is a German brand. कोई बोर हो रहा है क्या? किसी को नींद आ रही है पीछे? All good? ठीक है. ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है तो सुन लो. Actually चलो, even before we come to this, do people here, anybody smokes? अच्छा, वो फैकल्टी के सामने पूछ लिया, सॉरी, बाद में बात करते हैं. पर
My thing is, when cigarettes were launched, right, we all know that this is very bad for health and this and that. How do you market something which is like that? इसको तुम बेचोगे कैसे यार सामने वाले को? मतलब तुमको पता है कि ये इससे कैंसर होता है, ये इतनी बुरी चीज है तुम्हारे लिए, तुम किसी को फिर भी कैसे खरीदवा सकते हो ये चीज? सेलिब्रिटीज चलो ठीक है, हाँ, जुबान केसरी. But coming back to cigarettes, there's actually a whole movie on how they marketed cigarettes. And what they did was they made it a status symbol. They made it something which is cool to do. Ki if you're doing this, you're better than other people. It doesn't matter if it causes whatever, cancer, asthma, breathing problems, all of those things, right? So they basically put a spin on what it is, and they were able to market it a certain way, which is more or less what they did with this car. Because when this car was launched in the US, this is 50s and 60s, and now even today, having a car is something of a status symbol, right? It is, मतलब तुम कौन सी गाड़ी चला रहे हो, क्या कर रहे हो, वो सारी चीजें देखते हैं आदमी. तो तब भी वही था कि तुम, like what sort of a car are you driving, what, and of course all of those things about what is the mileage, what is the, मतलब तुमको कितना माइलेज मिल रहा है उस पर, ये सारे डिटेल्स तुम एक देखते हो ना गाड़ी लेते टाइम, राइट? सो नाउ दिस इज अ कार विच इज स्मॉलर देन एवरी अदर कार ऑन द अमेरिकन मार्केट, ठीक है? दिस इज ऑल्सो स्लोअर देन दोज कार्स ऑन द मार्केट. सो हाउ डू यू मार्केट समथिंग लाइक दिस? हाउ डू यू सेल दिस? These guys came up with these full page newspaper ads जिसपे पूरे पेज पे गाड़ी सिर्फ उतनी सी है, एंड द होल कैंपेन वाज थिंक स्मॉल. ओके, कि तुमको उतनी बड़ी गाड़ी, सो हाउ दे सोल्ड इट वाज, दे सेड बिकॉज इट्स स्मॉलर तुम ट्रैफिक में से इजीली निकल सकते हो, पहली बात, ठीक है? दूसरी बात, बिकॉज इट्स स्लोअर, इस पे तुमको माइलेज बेटर मिलता है, which is like some 5, 6, 7, 8 kilometers better than whatever the other cars are giving you. And that's how they more or less sold this car with this tiny, मतलब वो tiny सा गाड़ी का एक पूरा full page ad डाल के, ठीक है? It worked quite well. It became one of the, now Beetles, ये जो VW Beetle है, you'll see these in the American market quite well. We're looking at some more ads, ठीक है? This one is Stettler का ad. Stettler क्या करते हैं? पेंसिल्स बनाते हैं, स्टेशनरी पेंसिल्स, राइट? विद दिस थिंग, दिस ad that they have, कि a pencil is where it all begins, right? तुमको कोई भी आइडिया है, कुछ भी है, either you are writing a story as a writer, you are creating, designing, buildings, whatever it is, this is where it all begins for engineers, architects, से लेके designers तक. So that's how, like a very good ad for a pencil, right? Basic but good. अच्छा, टोमेटो केचप की बात करते हैं. ये हाइंस का ad है, हाइंस केचप जो आता है ना. Basically they've given you fries without ketchup, and they're saying pass the Heinz. So that's the ad there. Good, bad, okay. ठीक है, थोड़े और वीडियोस देखते हैं फिर. Same thing with this burger as well, कि pass the ketchup. ये याद है किसी को? नहीं?
याद है ना? You and I in this beautiful world, green grass, blue skies, in this beautiful world, you and I, winding lanes as dreams go by. You and I in this beautiful world. You and I in this beautiful world. Good ad. They're basically telling you that as a network provider, we'll go wherever you go, right? And they said it through a cute little doggy. So again, emotions, but well packaged into a nice story. एक और IKEA का ad है. एक सेकंड. ये वाला ad समझ आया? अच्छा लगा? नहीं? So basically they started this shot of an empty cot जो उनका product है पर वो खाली है, ठीक है? And they zoom out to this shot where the mother and the baby is not in the cot, the baby is on the mother. And they're just telling you कि we know that we are second best, proudly second best, right? Simple but like effective. 30 seconds से कम है. Good. I think it's a good ad. What do you guys think? Decent? ठीक है. अरे पेप्सी का एक बहुत अच्छा ad है. कौन सा वाला? 2-3 है पर एक ये वाला है. डिस. और फिर ये तो सबने सुना ही होगा. सुना है, देखा है? रोने की वजह कम है, हंसने के बहाने ज्यादा. जिद है मुस्कुराएंगे, खुश रहने का है वादा. उम्मीद वाली धूप, सनशाइन वाली आशा. तुम दिल से अगर पूछोगे, वो खुश रहना ही चाहे. जब सच्ची मन से मांगो, तो खुल जाती है राहें. तो खुल के खुशी लुटाओ, ये क्या है आधा आधा. उम्मीद वाली धूप, सनशाइन वाली आशा. उम्मीद वाली धूप, सनशाइन वाली आशा. वो सारे स्टार्ट्स का कोक से कोई लेना देना था नहीं. Okay, but they basically associated their product with happier things and happiness, right? अब लगता है कि स्टोरी टेलिंग का कोई थोड़ा बहुत यूज है लाइफ में. हाँ ना?
ये सेशन ऐसा ही टाइम पास था कि थोड़ा बहुत कहीं काम आएगा, कुछ सीखे, काम नहीं भी आए कुछ सीखे, बस उतना जानना है, ठीक है। थोड़े और एड्स हैं, और अगर देखना है नहीं देखना है, ठीक है। और I will also take you through some of my own work and just say how we use storytelling for brands. Cool. So before we do that, I'll just run through these ads quickly. We're never alone. And that is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way. And the world's sporting events are postponed or cancelled. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility to make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together. पता नहीं चला नाइकी का एड है, पर so do you think it makes sense to like see such ads definitely work, इसलिए ये बन रहा है और इसलिए हो रहा है. You also relate it to it better, right? You relate to the brand better because rather than selling products, they're trying to sell an idea. Right, with Nike, this ad was about you can't stop us, and that is the idea that they're selling rather than जूते. सही बात है? Does that work better? Yeah, like I don't know. That's why I was asking, are there any brands that you guys follow? जैसे, for example, someone is making, say, let's talk about bags. ठीक है, कोई bags बना रहा है. Now, there are two brands selling bags, and one brand is saying that I'm selling them, I get them made through this artisan and craftsman, and like most of my like जो भी profits है वो उनको equal share होता है 50-50 ये वो. And the other one is just selling you that bag. Which brand do you buy from? A, like the one who is telling you about that artisan making the bag, right? Now the thing is, the other brand might also be getting it from that same artisan. They're just not telling you that story, right? So that's how, for a brand at least, having that sort of story, building that story around it, it becomes important. तुम लोग किसी कैफे जाके बैठते हो तो वहाँ क्यों बैठते हो? एम्बियंस की बात होती है, वहाँ हमें कैसा फील होता है उसकी बात होती है. So it's the same thing with products, right? When you're buying a product, it should make you feel good. And if the brand is telling you that, okay, buying this, you will be helping someone, that automatically makes you feel good, right? Sorry? Mama Earth. Okay. I've heard of that brand. What do they do? Like they have mom and baby products or something. Oh. Sorry? Skincare products. Okay. Why is it Mama Earth though? Tell me the story and explain the branding, please. Okay. She had a child, so her child was not very comfortable with Indian cosmetic brands. Got it. So then she started Mama Earth. Got it. ठीक है.
हाँ, so basically she's saying that I'm a mother myself and my products are better because, yeah. सही है. So does it make sense that brands tend to build up a story around themselves and sell the story rather than the product itself? Patanjali तो भाई, it is, ठीक है. I'm coming to some of the projects that I have done. So there's this restaurant called Bhavan in Gurgaon, and this wall mural that you see, right? That my graphic design company, we created, and it is basically अपना जो कोई वो गली होती है ना वो पुराने शहरों में जहाँ पे बहुत सारे तरह का खाना मिलता है, तो that restaurant is basically that but fine dining. They do stuff like किसी ने अपम पे एग्स बेनेडिक्ट खाया है क्या? ठीक है, तो ये लोग ऐसा काम करते हैं, but their whole brand story is that they take inspiration from street food and create these dishes and मतलब जो भी. So this whole thing is basically different sorts of street food sellers. मतलब अपना पानी पूरी वाला हो गया या फिर चाट वाला हो गया. तो ये basically एक वो wall mural create किया था. This is the same thing in detail. Oh, they also have a bar. Now I think some of you might find this interesting. There is a ये सब अपने ऐसे इंडियन चीजें हैं जो याद रहती है ना. अंग्रेजी शराब की दुकान, हाँ, ठंडी बियर मिलेगी. हाँ, सो ये वाली जो चीज है ना, ये उनके बार के पीछे लगा है. उनका पूरा ब्रांडिंग ही ऑलमोस्ट ऐसा है कि अपना रेट्रो देसी ब्रांडिंग है. And we just created works based on. Oh, you see this guy there? Yeah, so detailing and character development, right? Simple सी चीज है, ठीक है. Now this was a brand called Exhibit A, which is a US based fashion brand. So इनका ये है कि they work with artists from all over the world. And they get that person to create some artwork which they convert into products. तो वो artworks के basis पे products बनाते हैं. And their whole marketing is this कि we are selling you wearable art and it's art for the everyday. You know कि मतलब art is something which is luxury, not affordable, not accessible. But their whole thing is कि हम कपड़े ऐसे बना रहे हैं जिस पे किसी artist का काम है. तो this is just a short animation we did for them. ये एक बैग के लिए ये सब किया था. So created a set for it और थोड़े renders किए थे. Okay, now this is a wedding mandap that we designed. पिछवाई में वो जो पिछवाई पेंटिंग्स में वो लोटसेस होता है ना, तो we basically converted an entire pool in Udaipur into a lotus pond, and that was the mandap. They got married under the leaves like that. So that is the kind of, yeah, so that's how you build that sort of story, right? And okay, this is also a wedding mandap, but now this is थोड़ा अपना Indian mythology in terms of वो, अच्छा ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है समझाना, पर शून्य का आइडिया पता है क्या होता है? जीरो तो होता है, पर अपना जो हमारे वेदों में और उपनिषद में जो लिखा है ना फॉर द शून्य इज बेसिकली इट इज एवरीथिंग एंड नथिंग.
हाँ मतलब वो बिंदु के अंदर सब कुछ भी है और कुछ भी नहीं है, राइट, एंड दैट इज द आइडिया. एंड उसके एक माउंट मेरू करके देयर इज दिस थिंग विच इज अ माउंटेन, लाइक इट इज अ सेलेस्टियल माउंटेन. तो वो थोड़ा अगर माइथोलॉजी में जाओगे तो, बट बेसिकली इसकी सीलिंग वैसी कुछ थी, जो वो लेयर्स में इट्स फॉर्मिंग दैट माउंटेन. 7 कुछ स्टेप्स होते हैं, तो इसमें भी 7 स्टेप्स वैसा करके वो माउंटेन फॉर्म किया था. तो बेसिकली क्लाइंट्स को ऐसे बेचना पड़ता है, ठीक है, ये बोल रहा हूं मैं. मतलब समझ रहे हो क्यों ये कर रहा हूं मैं, लाइक डू यू अंडरस्टैंड व्हाई? It's not that, I'm not saying that, okay, I didn't design with this in mind. When I sat down with the client's mom told me कि हमको ना ऐसा कुछ करना है, we wanted to be modern but we want it to be traditional. उनके मंडप पे 12 पंडित बैठे थे यार, मतलब ठीक है, पर 12, I'm not even kidding, 12 पंडित थे सिर्फ. मतलब bride groom, bride's mother father, groom's mother father and 12 pandits. That is, so anyway, but yeah, so for that sort of a client, we discussed this sort of a concept, and ये उस पे से develop किया वो design, वो सब किया था, but basically this was the thought behind it, and this was the story that came up around it, and we are done. Any questions? Any कुछ सीखे आज, कुछ नहीं सीखे? कोई पॉइंट है कहानियां सुनने सुनाने का अपार्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट? बोर हुए क्या यार? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मतलब द थिंग इज, सी फॉर मी ऑफ कोर्स इट इज इंटरेस्टिंग, आई डू दिस फॉर अ लिविंग, बट आई वांट टू नो व्हाट यू गाइज थिंक अबाउट दिस, एंड दैट्स व्हाई सी द थिंग इज कि it's very difficult to imagine storytelling to be something which you can use in everyday life, right? But from whatever we saw here today, my question to you would be, ऐसा लगता है कि कहीं काम आ सकता है? हाँ ना? अच्छा, और अगर ठीक है, I think half of you are still like, हाँ शायद काम आएगा, पता नहीं, देख लेंगे. मैथ्स भी तो सीख रहे हो यार. वो भी जिंदगी भर काम आता है, पर ऐसा लगता है कि नहीं आता. बट एनीवे, बेसिक, हाँ. एंड इट्स मोर अबाउट द होल आइडिया बिहाइंड दिस इज टू बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ टू द सामने वाला. बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, कि सामने वाले को, अब बहुत लोग ना ऐसा बोलते हैं कि मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, मेरे से नहीं होगा, राइट? कैट के लिए अगर मैं एक सर्कल बनाऊं और उस पर 2 ऊपर वो बना के, एंड आई जस्ट गिव इट विस्कर्स, यू स्टिल नो दैट आई हैव ड्रॉन अ कैट, राइट? कोई बहुत डिटेल्ड ड्राइंग या उसकी जरूरत नहीं थी, बस सामने वाले को समझ आना चाहिए कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं. तो एक चीज तो वो है कि लाइक पुटिंग योर आइडियाज अक्रॉस शुड बी वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड. देन if you can add that sort of a structure to it, ki the rhythm and that structure, and like, you know, you develop your characters and all, it becomes really easy to put your ideas across. So that's pretty much it. And I really find it cool that language is an abstraction. So I don't know what you guys thought about that, but theek hai. Anything you would like to ask about me, about my work, about the session? Anybody? Cool. है कुछ? किसका बजट? कोहली का देख, मैं स्पेसेस डिजाइन करता हूँ, तो उसकी शादी हुई थी इटली में, और यहाँ पे दिल्ली में एक संगीत हुआ था, तो वो हमारी कंपनी ने तब किया था. उसका बजट बैक देन, आई साइंड एन NDA, so I won't be able to disclose. With most celebrity weddings we have to sign NDAs. नहीं दे सकता. बजट कहीं से भी कहीं तक हो सकता है यार. It can be lakhs to crores, you have no idea. With weddings कहीं से भी कहीं तक जाता है. Any other questions?
कुछ भी, any feedback for the session, and अच्छा तो वो तो चलेगा, thank you, but okay, thanks guys, thank you. Good afternoon, everyone. I'm truly grateful to be the part of this gathering. On behalf of our GSFC University, I express my heartfelt gratitude to our respected guest, Mr. Abir Bauni, design architect and a senior designer, for gracing us with his presence and delivering such an insightful and inspiring session. Mr. Bauni, with your wealth of experience, which span across design, architecture, product design and interior spaces, it is truly commendable and it's an inspiration for all of us. How you merge creativity with functionality in your projects. We are fortunate to hear from someone who is not only excellent in the design industry, but also contribute to innovative solutions through your work with Devika Narayan and company and the Art Collaborative. Your session today was not only enlightening, but also motivating. We now have a deeper understanding of how stories shape the world around us and how important it is to blend both aesthetic and practical consideration. We feel enlightened and believe that we got to learn many things from this coherence. Once again, thank you for your valuable contribution and inspiring us to think differently and creatively. We are truly grateful for your presence here today. Now, I would request Hetal ma'am to facilitate sir with the memento. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am.